package for this project. So I'll right click here on SSS packages and I'll select to create a new SSS package. I will name this one. ये नया पैकेज अब ना हम आ गए हैं इस मॉड्यूल में, नजर आ रही है ना स्क्रीन। अब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं, ठीक है जी। जी सर। ओके, सादिया कह रही है वो बीमार है, चले कोई नहीं, अल्लाह से। तो मेरी अपनी भी तबीयत कोई बहुत अच्छी नहीं है। चलो जी आगे। Projects merge. Okay, so you have seen in the previous modules, to create a data flow, I just need to drag and drop the data flow task to the design area. I'll name this, let's say, products data flow. दो डेटाबेसेस जो है हमारे पास, उनको मर्ज करेगा वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर और एडवेंचर वर्क्स, इन दोनों का मर्ज करने का टास्क है। देखो ऐसा ना, तो उसको ये बनाएगा इसमें। Click on it to switch to the data flow tab. From now on, we'll spend most of our time here and barely visit the control flow. Let's take a tour on this interface. Here on the SSIS toolbox, you see that the objects available are completely different. Under Common, we have all of these transformations, sources, and destinations to work with, a lot of which we'll cover on these two last modules. Then we have a section dedicated just for Azure. These guys are here because we have installed the Azure Feature Pack during setup, but we won't need to work with them for now. Then we have other transforms, which are a bit less common, but we might need every once in a while. And finally, we have all the sources and destinations available here in the end, including the ones we mentioned on the slide, such as OLEDB, EDO.NET, and ODBC sources and destinations. You can also see the option to work with Excel, which is relatively common. We won't need to work with Excel on these demos, but if you want to do so, you might have to install some additional components as described on this article. All the way back to the top, you have the sources and destinations assistance here on the favorites. When you drag and drop one of them, let's drag and drop the source assistant here, for example. ये ना कनेक्शन बनाने के लिए बकायदा ये विजिट की तरह असिस्टेंट भी देता है, लेकिन यह है कि हमने वो बनाए हैं ना कनेक्शन, और ये आप देखेंगे आगे आपको पता चलेगा। Let's now switch to SQL Server to set the stage on the database side. On my first script, we create a new database called MergeDB with default values. After that, the script creates two identical tables, products and columns. Notice that all these columns are equal, ID, name, color, etc. The next script will be used later on SSIS to pull the data. वो क्या कर रहा है कि वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर वेयर हाउस स्टॉक आइटम में से उठा रहा है वेयर साइज इन दिस, तो ये क्लोथिंग की हैं, ये जो है ना ये सारी क्लोथिंग के लिए स्मॉल मीडियम लार्ज 3XL, तो और from wide world importers. The original table where I'm getting the data from is called stock items. There's a dynamically generated item type column that defines if the item is clothing or product. If the size is S, M, L, or XL, for example, I know it's clothing and I'll identify that as such. Finally, there's a tax rate column that will be used later on to calculate my after-tax cost of product. The rest of the columns are going to be imported to the new table. This table here, where I'm getting my data, has far more columns, but I don't need all of them for this package, so just remember, if you don't need it, don't bring it. Now let's take a look on the AdventureWorks. अब AdventureWorks से ला रहा है production.product से, वहाँ पे stock item से ला रहा है, यहाँ production.product से ला रहा है, और उसमें से क्या उठा रहा है वेयर साइज S, M, L, XL, देन ये अगर हो तो क्लोथिंग, इसके अलावा अगर दूसरी चीजें हैं तो वो प्रोडक्ट होंगी, ठीक है ना। तो दोनों टेबल में से उसने ये केस लगा दिया, तो इसकी बेस पे फिल्टर कर रहा है डेटा, उसका आप देखना चाहे बाद में खुद भी देख लीजिएगा, लेकिन ये समझ गया कि क्लोथिंग और प्रोडक्ट जो है ना दो टेबल बना रहा है यहाँ से उठा के स्क्रिप्ट on the और वेयर सेल एंड डेट इज नल, जिसकी अभी सेलिंग नहीं हुई, ठीक है, तो उसके This one, I'm doing an example of a horizontal filtering by using this where clause, where sell end date is no. If there is a sell end date, that means that the product's no longer being sold, and I want to start fresh on this new database with only active products. As it was the case with the wide word importers script, if the size is S, M, L, or XL, I know it's clothing, so I now called enough to automatically बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैं तेज, ये merge DB
के अंदर ही 2 टेबल क्रिएट किए हैं, सेम उसने बताया है, प्रोडक्ट्स के नाम से, क्लोथ के नाम से, और वहाँ से वो फ़िल्टर उठा के ला रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है, तो क्या कर रहा turn है, off to मैं साथ-साथ खुद बता देता हूँ क्योंकि देख चुका हूँ। तो यहाँ से ओएलईडीबी सोर्स, अब हम जाते हैं खुद जो है ना, अपनी मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। मैं स्क्रीन पूरी शेयर करने लगा हूँ आपको। ठीक है? अच्छा, ये हमारी मशीन है ऑलरेडी, ईटीएल टास्क, हमने अब नया पैकेज बनाना है मर्ज डीबी के नाम से। ठीक है जी? यहाँ हम आ गए, न्यू एसएसआईएस पैकेज, क्या नाम देंगे इसको हम, मर्ज डीबी कुछ भी दे दें, मर्ज डीबी। ठीक है जी, ये हमारा बन गया। स्टोर, ठीक है जी। अब उसके बाद ये है, हम आ जाएंगे, ये जो है वो डेटा फ्लो ले रहा है, डेटा फ्लो टास्क, इसको इसने क्या नाम दिया है वो भी देख लेते हैं। उसने प्रोडक्ट्स डेटा फ्लो, ठीक है जी। उसने प्रोडक्ट्स डेटा फ्लो 2 बनाए, 1 बनाया, 1 मिनट है, देख, ये तो आ गया ना डेटा फ्लो पे। एक ही बनाया है, data flow tab. प्रोडक्ट्स, From now on, we'll spend most of our time here. ठीक है जी। इसका नाम हम दे देंगे प्रोडक्ट्स डेटा फ्लो, ठीक है, ओके। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें ले जाएगा, या डायरेक्ट भी आप चले जाते हैं। तो ये अब देखो, प्रो डेटा फ्लो, एक से ज़्यादा होंगे तो फिर यहाँ से आप चलते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही है फिलहाल, तो हम एक डेटा फ्लो में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो OLEDB सोर्स, यहाँ आप आएंगे तो सोर्स अब आपने लेना है, वो कनेक्शन मैनेजर इज समथिंग एल्स, और OLEDB जो है, जो OLEDB कहाँ है भाई, हमारा नजर आ, अच्छा उसका एक और हल है कि ना, आप ऐसे कर लो OLEDB, तो ये आपको ला के देगा, ये जैसे OLEDB अदर सोर्सेज में देखो OLEDB आ गया, इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। लगा रहा हूँ हम इतने, And barely visit the control flow ये successfully. So choose to use a SQL command. That some options are ये आप DB अपने हाथ से source, तो as करेंगे, it's my अब ये general OLEDB preference. सोर्स ले, अदर See that सोर्स, there's an error here because I didn't yet configure the connection. ये So if I क्रॉस जब switch तक to the control कन्फिगरेशन flow, that error will मैं also be आपको बल्कि reflected ना here. इसकी See? But let's now switch. साउंड, अब आपको साउंड तो नहीं ना आ रही? ये सर अब नहीं आ रही। हाँ जी, क्योंकि वो कंफ्यूज कर दिया है आपको। ये OLEDB सोर्स ले लिया, अब OLEDB सोर्स में एडवेंचर वर्क्स को लिया है। आप टेबल व्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, टेबल व्यू नेम वेरिएबल, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल, हम एसक्यूएल कमांड लेंगे क्योंकि उसने एसक्यूएल कमांड के थ्रू ले रहा है वो। ठीक है, ये कौन सी कमांड डालेगा इसमें, ये वाली एडवेंचर वर्क से जो उठा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ये एडवेंचर वर्क का उठा रहा है, ये मैंने बना लिया था, ये देख लेते हैं SSIS में मर्ज डीबी के नाम से। ठीक है जी, तो हम ये उठा लेंगे एडवेंचर वर्क्स का जी है, ये एडवेंचर वर्क्स का, तो ये सिलेक्ट उठा लेनी है क्योंकि वो उसकी ज़रूरत नहीं है। इस पर डबल क्लिक करें। ठीक है, अब
न्यू से ले लें, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है ये एडवेंचर वर्क्स, इसको उठा लें। ठीक है जी, ये एसक्यूएल कमांड ले लें, ये पेस्ट कर दें। ये पुरानी कोई कॉपी मैंने उठाई है अभी। अच्छा, इसको फिर से कॉपी करते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अलाउ तो कर रहा है मुझे ना इस मशीन के अंदर कॉपी करने का। ऐसा क्यों है, एक है। मैं इसकी सेटिंग में जाके मशीन की चाहिए, कॉपी करके देखते हैं इधर कॉपी होता है। समझ नहीं आ रही इसकी कॉपी। इसकी कमांड क्या है टूल दिखाने की इसके? एक मिनट, मैंने इसको पास कर रहा हूँ सर्च रिकॉर्डिंग। अच्छा, हम ये ले रहे थे जी ये नई डेटाबेस बना रहा है। ठीक है, हम बना भी लेते हैं पहले। ये यूज मास्टर, उसके अंदर फिर 2 टेबल बना रहा है। ठीक है जी, नई डेटाबेस बन जाएगी। ये क्रिएट हो तो नहीं, मैंने की है कि नहीं मैंने? अच्छा जी, मर्ज के नाम से नहीं बनी, नहीं है। ठीक है जी, हम बना लेते हैं फिर न्यू क्वेरी। मैंने ना इसके बाद अजूर का एग्जाम ना उसकी प्रिपरेशन करनी है अपनी। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो वो आप इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि अजूर बहुत ज़्यादा जो है ना, ये अब डेटाबेस क्रिएट हो रही है और 2 टेबल बन रहे हैं आइडेंटिकल, बट नाम उनका फ़र्क है, प्रोडक्ट्स और क्लोथ। ठीक है, ये मर्ज डीबी का जो फ़ायदा क्या है कि इसमें ना ये एडवेंचर वर्क्स और वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर को जो है मर्ज कर रहा है। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा है कि ये वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर से जो है स्टॉक आइटम से उठा के ला रहा है, जो है ना ये साइज स्मॉल मीडियम लार्ज 3XL, जिसके साइज ये होगा उसको ये क्लोथिंग में डाल देगा और अदरवाइज वो प्रोडक्ट्स होंगी। इस तरह एडवेंचर वर्क से ला रहा है डाटा सेम, लेकिन वो टेबल डिफरेंट है। डॉट प्रोडक्ट जो भी ये स्मॉल मीडियम इस किस्म के होंगे वो क्लोथिंग में, और अदरवाइज वो प्रोडक्ट में यहाँ पे केस लगा के ला रहा है आइटम टाइप को ये। ठीक है जी, ये तो क्लियर है ना जी? अच्छा, अब हमने ओनली भी जो है ना एक डाटा, फिर बता देता हूँ आपको। हमने कंट्रोल फ्लो में आके एक ये प्रोडक्ट्स डाटा फ्लो लिया। ठीक है, इसके अंदर चले गए हैं, तो ये डाटा फ्लो वैसे भी जा सकते थे, तो ये डाटा फ्लो यहाँ बता रहे हैं। एक से ज्यादा होंगे तो आप यू कैन चूज। हाँ,
उसके अंदर अब हमने ये OLEDB सोर्स लिया है यहाँ से, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हैं OLE लिख के, और ये आ गया अदर सोर्सेज में पड़ा हुआ है। तो हमने इसको डबल क्लिक किया, हमने ये ऑलरेडी ये सिलेक्ट कर लिया था। टेबल और व्यू की जगह हमने SQL कमांड लेनी है। ये हमारी कमांड जो बना ली है, इसको पार्स कर लेना है आपने। अगर पार्स सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर लें। कॉलम्स पे क्लिक इसलिए कर लें, वो मेटा डेटा बना देता है आपका, ठीक है। नेम कलर कॉस्ट रिटेल प्राइस साइज, कि उसके नाम इसलिए ये सेम बना रहा है ताकि ना बाद में मैपिंग खुद ब खुद वो जो है होती रहे, ठीक है। तो एरर आउटपुट तो ऐसे ही नहीं है। अब यहाँ तक हम आ गए, इसके यहीं पे थे हम। चलते हैं जी, वीडियो किधर गई है, सही। तो यही है, वही पार्स कर रहे हैं। ये खाली दिखा रहा है कि इस तरह भी आप ना ये ग्राफिकली भी आप चाहें तो बिल्ड कर सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आपको टी सीक्वल आता है, खुद बनाएं। ये ग्राफिकल वाला जो है ना, फायदा नहीं होगा आपको। जो करना है आप टी सीक्वल के थ्रू पहले करें। सर ये यहाँ पे ग्राफिकल में ये भी कह रहा था कि मतलब यहाँ पे हम अपना टेबल बना सकते हैं ग्राफिकली। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जो है पहले से ही कुक स्क्रिप्ट जब बना रहे हो तो पहले से ही कुक करके लाओ। यहाँ आप ज्वाइन भी लगा सकते हो, यहीं से सारा कुछ कर लो, बजाय बिल्ड क्वेरी करने के। समझ गए ना? आपका टी सीक्वल अच्छा है, तो मैंने कभी बिल्ड क्वेरी यहाँ पे कहीं यूज नहीं की। आप इवन मैनेजमेंट स्टूडियो में भी है, ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन वो जिसको टी सीक्वल अच्छा नहीं आता। आप ये कर चुके हो? जी सर ये मैं कर चुका हूँ। तो वैसे तो मैं ना एक मिनट पास कर दूं। चलो। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ग्राफिकली जो लाना है वही लाओ जो पहले से प्रिपेयर करके लाओ। उसका आप और स्क्रिप्ट्स बना के रखो, फायदा रहेगा। इग्नोर भी कर सकते हैं, रीडायरेक्ट रो करना कहीं के और चला जाए अगर, ठीक है, तो उससे क्या किसी और टेबल में डाल दें या टेक्स्ट फाइल में डाल दें जिसमें एरर आए और फेल का बना। सर यहाँ पे जो रीडायरेक्ट नाउ का मीनिंग क्या ले रहा है, मतलब इस डाटा क्या को जी? रीडायरेक्ट का यहाँ क्या मीनिंग ले रहा है ये यहाँ पे। रीडायरेक्ट ये है कि आप कहीं और अगर भेजना चाह रहे हैं ना, रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं किसी और टेक्स्ट फाइल में, किसी और टेबल में, आप सेम टेबल बनाएं और उसका अंडरस्कोर एरर कर दें कि जो एरर आए, और उसकी डेटा ज्यादा आती है ट्रंकेशन की वजह से या डेटा टाइप्स के मिसमैच की वजह से, आप उसकी जो डेटा टाइप्स है ना वो स्ट्रिंग रख दें बड़े वाली, तो एरर भी होगी तो वो इंसर्ट कर देगा उसमें, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो एरर वही रीडायरेक्ट हो सकेंगे ना जो ट्रंकेट हो रही है इस किस्म की, या बड़ी एरर है वो तो पहले फेल हो जाएगी। समझ गए ना आप? कि आपने 1000 जी सर। रिकॉर्ड है, उनमें से एक आध रिकॉर्ड है, अगर आप एक्सेल फाइल से या किसी उठा के ला रहे हैं तो कहीं किसी ने ज्यादा बड़ा लिख दिया, कुछ है, ट्रंकेट हुआ, वो एरर दे देगा, वो पूरा फेल कर देगा। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, रीडायरेक्ट कर दो, अगर एरर है रीडायरेक्ट कर दो, बाकी जो सही है वो आपका जा रहा है डेटा टेबल में, और एरर वाली आप रिकॉर्ड आप बाद में देख लो भी क्या आए हैं। ठीक है, हम अब ये रीडायरेक्ट का भी कर देते हैं। ये हो गया एरर आउटपुट, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर ये अकेले का करना है सिर्फ एक कॉलम का तो उधर से कर सकते हो, वरना वो कह रहा है कि सबका करना है तो रीडायरेक्ट रो ऐसे कर दो, ठीक है।
ये चेंज अप्लाई करेंगे तो चेंज होगा। यहाँ देखें सबका वैसे तो मैनुअली कर लो, लेकिन आपके पास कई 10 20 30 40 50 कॉलम होते हैं। तो वो कह रहा है देखो अब रेड की जगह येलो आ गया, क्यों? क्योंकि रीडायरेक्ट तो किया, बट लेकिन आगे डेस्टिनेशन भी तो दो ना जहाँ पे वो रीडायरेक्शन होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वो उसका फॉलो करते हैं। अच्छा, ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये जो एरर लिस्ट बता रहे हैं ना, जब एरर होती है तो एरर लिस्ट रो सेंड टू द एरर आउटपुट विल बी लॉस एंड एट यू। तो वही जो बता दी उसने कि भाई आप उसको रीडायरेक्शन करो, लेकिन ये आपको ये चीजें पता चल रही हैं, वो बताना तो वो कंपोनेंट ही चाह रहा है ना कि यार इस तरह भी आप एरर देख सकते हो। ठीक है, और प्लूरल साइट पे अच्छी चीज ये है कि इसके अलावा काफी एडवांस लेवल के भी हैं, आप करते जाएं। क्योंकि आप वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आपने कहा कि आपको ये अच्छा लग रहा है। अब आपका बंडल, अब आपको समझ आ रही है कि जो आपने पहले टी सीक्वल अगर आपका स्ट्रांग है तो आधा काम आपका एसएसआईएस में वही कर देगा। फिर उसके बाद जो है डेटाबेस पे जितना अच्छी आपकी ग्रिप्स है, वो सारी चीजें आगे आपने अभी स्केजुलिंग भी करनी है, स्केजुलिंग तो खैर आसान है। और वो तो ये एसएसआईएस आपका स्ट्रांग पार्ट है। विजुअलाइजेशन है वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि वो सबसे सिंपल है मेरा ख्याल है। ऑलरेडी हसीब आपने तो यूज किया होगा टैबलियो शायद। नहीं सर, मैंने नहीं यूज किया वाटरफ्लो। अच्छा, कोई कौन सा फ्रंट एंड टूल यूज किया? आई मीन फ्रंट एंड विजुअलाइजेशन। सर पांडा और ये अभी आपने पाइथन यूज को यूज किया। करते हुए यूज किया? जी सर। पांडा तो उसका पैकेज है ना पाइथन का। विजुअलाइजेशन भी हम पाइथन कर देता सकते हैं है। उससे ना। अच्छा, पाइथन आपने की जी किस किया है, एनाकोंडा यूज करके कि इसमें विजुअल स्टूडियो में, किस में आपने किया? सर मैंने क्या सारी किया है, एनाकोंडा भी यूज की हुई है, विजुअल स्टूडियो भी यूज की हुई है, पाई चाम भी? जुपिटर नोटबुक भी यूज की हुई है। जुपिटर नोटबुक तो पार्ट है ना एनाकोंडा का ही। तो पाई चाम जी सर, भी यूज किया है? पाई चाम भी यूज किया हुआ है। अच्छा, मैंने ना ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था, इनमें सबसे जो खूबसूरत स्टाइलिश है वो पाई चाम है। हाँ पाई चाम है सबसे सही। चले ये अब देखते हैं फिर ना, मैं आपको टैबल्यू का भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आप जो खुद कर रहे हो ना, याद रखो अपना हसीब हसान, जो अब मैं टैबल्यू का है ना आपको शेयर कर देता हूँ, उस पर आप करें काम, तो वो आपको सबसे अच्छा याद रहेगा जो खुद खप के आप करोगे। ये एग्जांपल दे जी रहा है, सर। खैर एडीओ नोट के भी, ये भी सोर्स आप ले सकते हो। ये डॉट नेट से आता है ज्यादा, जो है एडीओ डॉट नेट का जो है एडवांस डेटा अडाप्टर है, कुछ इस तरह बनता है इसका, एडवांस डेटा ऑब्जेक्ट। इसमें जरा ये भी डेटा का कनेक्शन लगा सकता है, लेकिन इसमें आपको वेरिएबल की ऑप्शन नहीं दे रहा है ये, लेकिन इसको ये यूज नहीं कर रहा है एडीओ, खाली उसने एग्जांपल दी है। ठीक है, अच्छा अब अब ये डेस्टिनेशन कहाँ ले जाना है हमने बना, ठीक है, ये डेस्टिनेशन जो है ना हमने लेनी है, यहाँ से OLEDB सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है इस तरह, तो यहाँ आप लगा दें। ठीक है, आपने पहले ये जाके देना है कि आपके पास इसको नो इनपुट कॉलम है। ओके, यू वांट टू कंटिन्यू एडिंग द अवेलेबल प्रॉपर्टीज, यस भी कर दे तब भी हम वो कनेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे तो हमें कनेक्शन नहीं मिलेगा, न्यू में जाएंगे, कैंसिल करेंगे, बनाना पड़ेगा, वो हमने नहीं बनाया हुआ। ठीक है ना, न्यू कर लेंगे, अभी क्रिएट किया ना डेटाबेस। नहीं माशाल्लाह हमारे ये 5 स्टूडेंट्स का कोरम पूरा ही है। डॉट डाल दें, लोकल है। अगर आपका कहीं और है, ये भी पूछा था हसान ने, काशिफ आपको भी बता दूं कि ये आप किसी भी मशीन पे आप कॉन्फ़िगर कर लें विजुअल स्टूडियो पूरा उसको, और ये पूरे जो कनेक्शन ड्राइवर होने चाहिए, सोर्स डेस्टिनेशन कहीं पड़ी है वहां का यहाँ नाम देना है आपने। ठीक है,
लेकिन हम लोकली काम कर रहे हैं जरा आसानी के लिए, तो इस वजह से। अच्छा सर, जैसे ना जो एसक्यूएल है वो वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल थी और ये हमने लोकल इंस्टॉल की, तो अगर आप तब डॉट डालते हैं ना तो वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो तो डॉट मैंने का ना मतलब क्या है? एक मिनट, डॉट का कि आप मतलब क्या है? जितनी भी लोकल लोकल डेटाबेसेस है उनको लोकल, ले आते यस। हैं। तो आपका लैपटॉप डिफरेंट है, वर्चुअल मशीन डिफरेंट है, तो वो लोकल तो ना हुई जी ना, वो बिल्कुल। दैट इज अनदर सर्वर, तो यू हैव टू गिव द एड्रेस। जी। ओके, ठीक तो है। मैंने ना वर्चुअल मशीन में यही विजुअल स्टूडियो दोबारा इंस्टॉल करके ना सब कुछ किया तो वो हो गया था। नहीं, अगर आप लैपटॉप से भी यूज करना है तो कनेक्शन का नाम दे दें पूरा, जैसे यहाँ पे पोर्ट नंबर दे दें। अगर पोर्ट कस्टम पोर्ट है, डिफॉल्ट पोर्ट पे जरूरत नहीं होती। मैं अपने बाहर से खोल के कनेक्ट हो सकता हूँ इससे, मेरे पास है। लेकिन वही है कि नॉर्मली जो है हम जरा अभी आसानियां कर रहे हैं ना चीज़ों की। ठीक है जी। अब हमने ना, ये हमें नुकसान क्या है इसका, ये तो बन गया कनेक्शन, लेकिन है कि हमें ये लेना है। हमें ये चीज़ है कि उसको डेस्टिनेशन को सोर्स चाहिए होता है कि डेटा तुम्हारा आना कहाँ से है। ठीक है। अब हमारे ऑलरेडी ये बन चुका है इसका MongoDB का। ठीक है। फास्ट लोड यूज कर रहा है ये। ठीक है। इसमें ये टेबल लॉग और चेक कांस्टेंट लॉग कर लें, जब आप लोड कर रहे हैं तो टेबल लॉग कर सकते हैं और चेक कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आप सेट कर सकते हैं कि रोज पर बैच आप चाह रहे हैं कि भी देखो, अगर आपके पास पड़ी हुई है 10 मिलियन रोज, तो वो तो मर जाएगा और टाइम लेगा, तो वो और आपकी डेटाबेस की लॉग जो है ना वो कमिट उसके बाद होगा, तो उसका नॉर्मली क्या होता है 10,000 जो है ना 10,000 करके आप करते रहे, मैक्सिमम इंसर्ट कमिट साइज ये रखते हैं वो। ये आप एडवांस लेवल पे जाके कर लेंगे। ठीक है ना। तो जब आप लोड करेंगे आपको इशू आएंगे परफॉर्मेंस के, लॉग के और चीज़ों के, फिर आप ये करेंगे। अभी इसमें इसने नहीं बताया, लेकिन ये मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा जी। तो अब उसके पीछे चलें जी, ये कि अभी जो बताना चाह रहे चलें। माई डीवी ले ली। ठीक है। अभी ये खाली कह रहा है कि ना टेबल जो है वो टेबल भी न्यू बना लेने दो उसको खुद, सिर्फ टेस्ट के लिए बना। अच्छा, कैंसिल कर, क्योंकि जब आज न्यू का कर दें। ओके। इन्हीं को बता। अच्छा, ये भी चलें देख लें। अच्छी है। ये जो है हमने एक टेबल जो है ना खुद ब खुद नया टेबल बना रहा है ये OLEDB डेस्टिनेशन के नाम से, जब उसे कहना न्यू बना दो, उसको मैप नहीं किया। अब यहाँ मैपिंग में आएंगे तो ये कॉलम की मैपिंग खुद कर लेता है ये। ठीक है। अगर आप ये कॉलम इधर जाए, ये आप चाह रहे हैं कि ना जाए, जैसे वो ये बता रहा है कि अगर आपको नहीं है तो यू कैन, यहाँ पे रिमूव करके उसने एग्जांपल दिया, तो वो क्या करेगा, अ, इसमें वो वैल्यू नहीं जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, जब जैसे आइडेंटिटी कॉलम है, आप टारगेट में वो खुद जनरेट हो रही होती है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो चाहिए। तो ये बता रहा है कि मैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है आप चाहें तो ये मैपिंग मैनुअली ये खुद ब खुद कर रहा है। अगर आप, या एक और बात बताऊं, अगर आपके ये नाम सेम ना होते तो क्या होता है, इसको आपको इसने मैपिंग नहीं करके देनी थी, ये कलर की जगह ये XYZ होता और आपको पता है कि ये कलर कॉलम है, तो बट उसका नाम डिफरेंट है, इट विल नॉट डू ऑटो मैपिंग, तो आपको क्या होता है मैनुअली ला के मैपिंग करनी पड़नी थी। अभी मैं डिलीट कर दे के इसने जो एग्जांपल समझाई है, तो अभी कह रहा है, वो कह रहा है दोबारा से यहाँ मैपिंग कर दो तो उसने कर ली। तो नेम सेम उसीलिए वो शुरू से कर रहा था, और ये आपने भी ये स्टैंडर्ड रखना है, एलियास दे दो बेशक क्वेरी में, तो उसका उसने एलियास ही दिए हुए हैं। फायदा क्या है कि ऑटो मैपिंग होगी, आपको कम से कम खपना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये अभी यहाँ तक आ गए। एरर आउटपुट जो है, चलें जी, ये हमारा हो गया, ओके कर देते हैं एरर आउटपुट में। ठीक है। ओलीडे में फेल, अभी ऐसे चला देते हैं। ये चला गया, रेड साइन चला गया।
अब ये एरर ही डायरेक्ट करने लगा है फ्लैट फाइन को। वही जो ये 2 कॉलम ऐड कर दिए, बाकी तो वही रहा कॉलम का, और वो जो उसने कोमा सेपरेटेड ले रहा है ना सीएसवी, तो यही है कैरेज रिटर्न और लाइन फीड, और ये कोमा सेपरेटेड, ये हमने पहले भी किया था। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे 2 मजीद ऐड कर देगा कि एरर कोड क्या है, एरर कॉलम क्या है। ठीक है जी, ताकि आपको वो रहे फायदा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन या सर्च कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं, और फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ से ये जो है ना एरर इनपुट इधर आ गई, ठीक है। तो ये फेल कंपोनेंट इधर हो रहे हैं, अप्लाई, ओके जी। अच्छा, वो कनेक्शन मैनेजर बनाना है आपको इसका। ओके, ठीक है, आप ब्राउज करके कोई भी पाथ दे दें, हमने पहले भी एक बनाई थी, कोई फाइल का नाम दे दें CSV के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम एरर डॉट CSV के नाम से दे देते हैं, ओपन कर दें। ये पाथ आ गया, कैरेज रिटर्न है, फॉर्मेट डेलिमिटेड कॉलम्स, ठीक है, कोमा है से डेलिमिटेड हो रहे हैं। एडवांस में उसने क्या किया है जी, एरर, ये एरर के इसमें लास्ट में दे दिए इसने, ठीक है। प्रीव्यू करना है तो, क्योंकि 0 एरर है अभी, तो कॉलम नेम इन द फर्स्ट रो, मैं इसलिए सारा उसको देख रहा हूँ कि ना एरर ना आए। तो उसने जब ओवरराइट किया है, खैर वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कॉलम नेम इन द फर्स्ट डाटा रो आपने करना है, डाटा ये अभी नहीं थ्रो करेगा। तो मैपिंग देख लें इसकी, खुद ब खुद उसने मैपिंग की, पहले लाया उसके बाद उसने, तो ये एरर के कॉलम जो है हमने ऐड नहीं किए, ये खुद ब खुद ऐड हो गए हैं। ये आपका जनाब, अब जो है आपका वो येलो साइन भी चला गया, तो अब वो रीडायरेक्शन की भी समझ आ गई। और जरूरी नहीं आप फ्लैट फाइल में करें, फ्लैट फाइल में वो इसलिए कर रहा है कि एरर, फिर वो कॉलम आप बनाएंगे या बड़ी टाइप के देंगे या डिफरेंट देंगे, इसमें एरर मिल जाएगी, उसको आप फिक्स कर लें। ठीक है, नहीं तो टेबल में करके उसमें ना एक हमारे पास जैसे हो रहा है कि ना एक एडिशनल ना कॉलम ऐड कर दिया जाता है, तो 0 के फ्लैग दे के, तो उसको करेक्शन करके फिर से ना इसमें ही अंदर एक बैच बना दिया जाता है कि उसका अगर दोबारा से प्रोसेस कराना है तो उसका 0 रिकॉर्ड कर दो, तो नेक्स्ट टाइम वो जो है उससे पहले उसको जाके जो एरर वाले हैं उनको प्रोसेस करेगा, क्योंकि आप उसको करेक्शन अगर कर चुके हैं नेक्स्ट डे जब रन होगा। वो आपकी स्मार्टनेस कितना आप अच्छा बनाना चाहते हैं, ये दिस इज हाउ टू डू, बट वो आपकी स्मार्टनेस है एंड पे। अच्छा जी, ये उसने रन करके बता दिया, एरर नहीं आई, आप चाहें तो एरर डाल के देख सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओएलई डेस्टिनेशन में अभी जो हमने बनाया, ओएलई डीवी डेस्टिनेशन में
हमारा अभी टेबल वो नया बना रहा है, ठीक है ना, तो वो रन करेंगे। अभी कोई टेबल नहीं है, 2 टेबल हमने खुद बनाए हैं मर्ज डेटाबेस में। कहाँ गई है मर्ज डीबी? इसमें ना 2 टेबल हमने प्रोडक्ट्स और क्लॉथ के बनाए हैं। अभी OLEDB बनाएगा इसमें। अच्छा बना चुका है, जब हमने किया उसने क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें डेटा नहीं होगा। हमने अभी एग्जीक्यूट कर दिया उसको, देख लेते हैं। अगर एग्जीक्यूट नहीं किया तो खाली टेबल बना हुआ। हाँ जी, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये टेबल हमने नहीं बनाया, इसी के नाम खुद वो बना दिया उसने, स्ट्रक्चर बना दिया। और इसमें आता यही है कि आप ना हर जो ये इसके कंपोनेंट जितने हैं ना, इसको मुख्तलिफ तरीकों से ढूंढ ढूंढ के आपके पास जैसे है, तो वो बार बार करें, उसकी डिफरेंट सिनेरियो करें, तो वो आपका उतना अच्छा हाथ साफ हो जाएगा। और ये इसके बंदे बहुत कम है SSIS के, ये भी बता दूं आपको। और अगर बंडल हो T-SQL, डेटाबेस, SSIS और प्लस, तो यू आर अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, अब इसमें डेटा आ गया होगा। पाइथन का काम भी ये कर रहे हैं ना आपको, अगर पाइथन से भी कराना, ये डेटा आ गया इसमें। अब ये कह रहा है इसको डिलीट कर दो, वैसे ही हमने एक टेस्ट किया था, तो ये डिलीट कर देते हैं। असल तो काम कुछ और करना है अभी हमने इसको, ठीक है। चलिए। अब उसने डिलीट कर दिया एडवेंचर से। ये वाली DB की भी निकाल दी, हम भी निकाल देते हैं इसको। एक मिनट, ठीक है, स्टॉप करेंगे इसको। और दूसरा मुझे इसका बहुत अच्छा लगा पढ़ाने का जो तरीका है ना, इसने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया चीजों को, कीप इट सिंपल रखा है। अच्छा जी, हम आगे चलेंगे। अच्छा, कॉपी कॉलम, यानी सेम टू सेम कॉलम आगे आप कॉपी करना चाह रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिराइव जो होते हैं। और यहाँ बता दें कि जैसे इसने एक एग्जांपल दी कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला के फुल नेम बनाना चाह रहे हैं, सो द सेम थिंग यू कैन डू इट फ्रॉम T-SQL। तो ज़रूरी नहीं है जो ये एग्जांपल समझाने के लिए है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें कि आपका जो है T-SQL में ही सारा काम हो जाए जो हो सकता है। कंपोनेंट को सिर्फ ये ऐसे सही इसको उस वक्त यूज़ करें कि जो काम आप T-SQL से नहीं कर सकते। कॉपी कॉलम को इसने कॉपी किया है और ये कि वहां से उठा के नेम देता जाएगा, आगे जो उसका वो कॉपी बनाएगा। आप आप मर्जी है उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो कॉपी कॉलम नॉर्मली वो नहीं रिक्वायर।
आवाज आपको अनेबल कर दूं इसकी? जी सर। Come back to SSIS. Here I'll create another OLEDB source, which I will rename to Wide Word Importers Import. Then let's configure the source. I will now select the connection to Wide Word Importers, and under Data Access Mode, I will, again, select SQL command. Then I'll paste the SQL code that I have copied from SQL Management Studio, ये like parallel this. एक और बना I रहा will now parse the query, it's all good, and then I'll preview my data. I don't need to do anything with the other tabs, so just click OK here. Now I'll double click on the derived column from the toolbox, arrange that close to the Wide Word Importer source, link them together, and rename this to Calculate Final Product Cost. एक और OLEDB ले लेंगे। OLEDB जो है इसके लिए SQL सर्वर के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। OLEDB सोर्स पहले ये रोक दिया था, इसने आपने शायद इसका अगर सुना होगा तो ये फिर से वो ODBC यूज करना शुरू कर दे, लेकिन दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सपोर्ट किया OLEDBC। तो कनेक्शन जो है हमारा इसमें वाइड वर्ल्ड का लेना है जी। ये मर्ज DB1 का कहाँ से आ गया? न्यू बनाएंगे, हमारे पास वाइड वर्ल्ड का नहीं है तो नया बना लेते हैं। ये है, अच्छा जी ठीक है। टेबल व्यू की जगह SQL कमांड लेनी है जो हमने, ठीक है, और कमांड हमने ये बनाई हुई है, यहाँ से उठा लेते हैं वाइड वर्ल्ड की, ठीक है, ये उठा रहे हैं यहाँ से। इसने सबको प्रॉपरली जो है यहाँ पे क्वेरी में ही सेट कर लिया। जो करना कोशिश करें यहीं पे ख़त्म कर लें, यहाँ जाके बाद में सिर्फ आपको वो मिले। प्रीव्यू डाटा कर लें ज़रा, अच्छा होता है। ओके, अच्छा जी, ये आगे डिराइव्ड कॉलम ले लिया इसने। डिराइव, ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। Double click on it to Calculate configure, final and here's our product. famous expression builder once again. Under derived column name, I'll create a new column called Final Cost. Under derived column, I'll select Add as a new column. That's the feature that I mentioned on the slides that effectively does the same as copying the column इसने यहाँ from बताया SQL ना अभी Management जो Studio, ये behavior of the Adventure इसलिए मैंने workspace to be आवाज applied to it. For this database, ये you data see that I have a unit price and I also have a tax rate to be applied to it. I will prefer to have the final price already with the tax rate तो ये added to फंक्शन my लगाने merge लगा। ये database क्वेरी में भी to कर mirror सकता the था, same behavior of लेकिन and close यहाँ पे parentheses दिखाना again. मकसूद है कि आप यहाँ कैसे लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो So for example, if the tax rate is 15%, the formula will multiply the unit price by 1.15. I'll leave the other values as default and click OK. Now apply the unit price by 1.15. I'll leave the other values. ठीक है, अब ये हम लिख लेते हैं फाइनल कॉस्ट एड द न्यू कॉलम, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, डेट टाइप इसकी, ठीक है, ड्राइव्ड कॉलम नेम उसने ये दिया है, ठीक है जी। हम यहाँ पे आए, जो यहाँ से आ रहा है ना, वो जो कॉलम्स आ रहे हैं वो ये सारे हैं। तो ये उसने क्या, कौन सा जी कॉलम लिया है जी, नाम क्या दिया है देख लेते हैं हम। टैक्स रेट वाला लिया था। नहीं, ये नाम वैसे एलियस दिया ना उसने, फाइनल कॉस्ट, ठीक है जी। और ठीक है, उसमें यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये आप याद रखने की कोशिश करें, मुझे बताएं। यूनिट प्राइस यहाँ से खींच के यहाँ ले आएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कर रहे हैं, ये है जी 1 प्लस टैक्स रेट डिवाइड बाय, ये तो फार्मूला है, 1 प्लस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। डबल ब्रैकेट क्लोज होंगी क्योंकि एक उससे पहले स्टार्ट हुई है। डेटा टाइप ये खुद ही ले लेगा न्यूमेरिक, ठीक है जी। ये हो गया जी, ये आ गया, अच्छा जी, चलें आगे। Values as default and click OK. Now I want to show हमने you अगर कोई something गलती really नहीं ना useful लिखने में with की price by तो 1.15. 1 प्लस I'll leave the other values as default and click OK. Now I want to show you something really useful, which is the concept of data viewers. First, let me drag and drop a new object here, let's say the copy column that we have worked with before. I'll link this one to the derived column that we have just created.
Now I'll right click the data path, the blue arrow, and select the option Enable Data Viewer. What this does is to allow me to see my data during package execution. I don't need to go all the way back to the SQL Server and see the data already copied. I can stop right here and see how the data looks like at this point of the workflow. Needless to say, it's also super handy for troubleshooting. Let me execute this task, so right ये एक अच्छा है, लिख लेना, तो ये जितना ये कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन ठीक रखेंगे आपको फायदा रहेगा, बाद में पहचानने में खुद आसानी होगी, वरना बनाने के बाद खुद भूल जाते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ना डेटा एनेबल डेटा व्यूअर करके, ये भी आप कर चुके हो अपना हसन? जी सर, गुड। तो आप कंप्लीट कर चुके हो? ये इसके 6 में ड्यूल कर लिए थे, लास्ट वाला रह गया था। 9 बज गए, मुझे ना बच्चे को स्कूल से लाना है, और ये मैं ना सारा कराने की बजाय अगर ये सारे आप खुद कर लें तो ज्यादा अच्छा नहीं है? इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, ये एनेबल डेटा व्यूअर से क्या करता है कि जो प्रोसेस रन हो रहा है वो दिखा रहा है आपको कि भी ये ऐसे डेटा अभी जा रहा है, बजाय कि आप OLEDB डेस्टिनेशन में जाके डेटा लोड उससे पहले ही आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि मेरी अगर एरर होगी तो एरर दे देगा, नहीं है तो ऐसे जा रहेगा, अच्छा ठीक है जी, ये इसमें इसने देखा जी USB और ये सारा ये चीज़ें जो है ना ऐसे आ रही हैं। ठीक, तो ये हमने इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसने ये क्योंकि 2 से ला रहा है ना, ये रो डिस्प्ले, ठीक है, अब इसको बंद करते हैं हम। अच्छा, ये बस ये मैं ख़त्म कर दूँ, वो बताना चाह रहा है उसके साथ। click anywhere here on the design area and select Execute Task. Now the task is paused on my data viewer ऊपर से भी and बंद कर here's my देते हैं। data. ये 227 SSIS है। will wait for me to close this data viewer before resuming execution, very similar to एक when we debug a package. Pretty awesome, right? And here's my final coast, already with the tags added. I'll stop execution and break the link to this copy column, but I will not delete this transformation, as I'll use this trick a few more times during these demos. By the way, I did this transformation on SSIS, but I could have done it on the SQL query itself. And, as you already know, that would be the faster route. However, there are cases where I don't have the ability to transform the data from the SQL query. For example, suppose that I'm getting the euro-dollar rate from a web service at package execution, in order to perform currency conversion with the most recent rate. That's one example where using the derived column would be helpful. Now let's see how to convert data, which is quite common in ETL. When you're sending data from a source to a destination, it's quite सर आपका माइक म्यूट है।